viewers, this is Abhishek Anand, and today we are going to study about concrete. Concrete is one of the most important building material in civil engineering, and it is made up of it is made up of binding material, plus iron aggregate plus coarse aggregate plus water, water, and this whole mixture is known as plain concrete. Plain concrete. Here, here the binding material. Here the binding material is cement. Fine aggregate is sand. Coarse aggregate is aggregate. Stone chips, and water is water. This form combination of four in a different proportion is made to make a concrete. Later we will talk about proportion also, but now plain concrete और concrete जो है concrete it is good in compression. It has a good strength and it can be used to bear compressive force. But when it comes to tension, its tensile strength is respectively poor. Is very poor respectively actually. Is respectively poor. So when we use this concrete as a bending material and we use to build the structures, so in the structures there are two things which can come. Either it can be compression or it can be tension. So when we use to design the structure or the unit of a structure such as beam, column, footing, slab, then the compressive force is taken up by concrete itself, and when it comes to tensor, there we use reinforcement to bear the tensile force. Okay. अब in reinforcement we use steel bars, iron steel bars, and the combination of bars and the grading of bars is somewhere like FE 500, 415 and 250. Okay. So now the question here arises is why we use steel bars? Why we use steel rods for making these things and then we providing that? This is because the coefficient of thermal expansion अल्फा जो है वो कंक्रीट का और स्टील का सेम रहता है. तो when the temperature is increased, then it will try to expand. So if we are going to use steel with concrete, then it will expand in same proportion. And when temperature decrease, it will try to contract. So it will contract in same proportion. That's why only steel reinforcement is used. Now, let's understand the manufacturing of concrete. So the concrete is manufactured. Concrete को जो बनाया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि the voids which are between the coarse aggregate, the voids, if you keep all the coarse aggregate at one place, अगर आप सारे coarse aggregate को एक place पर रख दीजिएगा, तो there will be void present in that. So the voids which are present in coarse aggregate is to be filled up with sand. And the voids which are present at sand
and the voids which are present inside is to be filled up with cement. तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर मान के आपका कंटेनर है, इसमें आप पहले कोर्स एग्रीगेट रख दीजिएगा ढेर सारा, जितना आपको कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा उतना कोर्स एग्रीगेट रख दीजिएगा। कोर्स एग्रीगेट रखने के बाद हम लोग इसमें सैंड को डालते हैं। जब कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो सैंड के साइज से छोटा बड़ा होगा, सैंड का साइज कोर्स एग्रीगेट से छोटा होगा, तो उसको हम डालेंगे ताकि इसके सारे वॉइड्स भर जाए। पर जब सैंड को भी जब आप इसमें डालिएगा तो सैंड को भी डालने के बाद सैंड के भी पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में थोड़े बहुत वॉइड्स बच जाएंगे, तो फिर वो जो वॉइड्स है उसको हम लोग सीमेंट से भरते हैं। उस जो वॉइड है उसको हम लोग सीमेंट से भरते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ईच एंड एवरी वॉइड्स which might be present in the concrete should be fed up by these three material, and then after these three water is added. Water is added. So these three things is mixed in a different ratio. Is mixed in a different is mixed in a different ratio. और ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो जो होता है वो दो टाइप से बनाया जाता है। रेशियो इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज नॉर्मल मिक्स एंड द सेकंड इज डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो IS कोड के हिसाब से M10, M15, M20 और यहाँ है M25। ये हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये M और जो लिटरेचर लिखा हुआ है वो समझ में आता होगा। 30 से M80 तक है। अब जो कोड रिवाइज हो गया है उसमें M100 भी आ गया है। यहाँ पर जो नॉमिनल मिक्स होता है ना, चाहे ये पर ये नॉमिनल समझ लेते हैं। M जो है, M ऐसे ये जो M है और यहाँ पर कोई एक वैल्यू है X मतलब X हम वहाँ यूज करेंगे अभी आगे। यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहते, 10 ही रहते, तो M10 जो है, M stand for mix and this numerical value is stand for characteristic compressive strength of the concrete cube. ठीक है, this stand for characteristic compressive strength of that concrete cube. Characteristic compressive strength होता है कि if you are going to create a 100 block of cubes with this concrete, then it is said that only 5% of result will form less than this. Rest compressive strength result will be higher than 10 of. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए कि कोई एक कंक्रीट है, कंक्रीट का आपने 100 ब्लॉक्स मंगाए, 100 क्यूब्स मंगाए, उनकी जब आपने टेस्टिंग की तो 95 क्यूब जो होंगे उनका जो टेस्ट रिजल्ट होगा 10 से बड़ा होगा। कम से कम 95 का टेस्ट रिजल्ट 10 से बड़ा आएगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो अब ये हो गया, आपको मिक्स का डिफरेंस समझ में आ गया। अब दूसरा चीज है कि ये जो नॉमिनल मिक्स होता है वो ये तीन जो होता है, ये नॉमिनल मिक्स होता है, ये तीन जो होता है ये डिजाइन मिक्स होता है। ये डिजाइन मिक्स, इसका जो रेशियो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला एंड टेस्ट रिजल्ट, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है x इज टू y इज टू z के फॉर्मेट में। ठीक है, x जो होता है वो होता है अपना बाइंडिंग मटेरियल इन दिस केस इज सीमेंट। y जो होता है वो होता है फाइन एग्रीगेट इन दिस केस इज सैंड। ये सैंड है, ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये सीमेंट है। और z जो होता है जेड इज कोर्स एग्रीगेट, जो एग्रीगेट रहता है वो एग्रीगेट रहता है। तो इसी रेशियो में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Now let's come to next thing, that is let's discuss curing. What is curing? Let's discuss is curing. Curing क्या होता है? Curing is the addition of water. ठीक है, H2O वाटर होता है। एडिशन ऑफ वाटर कितने दिनों के लिए? जब सीमेंट की कास्टिंग हो जाती है तो आपको दिखेगा कि उसे पानी से भिजाया जाता है। तो कितने दिनों के लिए भिजाया जाता है? इट इज डन एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स।
ठीक है। तो इसको पानी से इसलिए भिगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग होती है ना, तो वो क्या करता है कि लिबरेट करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को। इट लिबरेट द हीट ऑफ इट लिबरेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन। और जैसे जैसे वो हीट को लिबरेट करता है तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी हम लोग देते रहते हैं, और जैसे जैसे वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को हीट को लिबरेट करते जाता है वैसे वैसे वो हार्ड होते जाता है, हार्ड। इट गेट हार्डन विथ टाइम, और जैसे जैसे वो हार्ड होते जाएगा इट ऑल्सो गेन स्ट्रेंथ। ये जो भी बातें हो रही है कंक्रीट के लिए बातें हो रही है, ठीक है। कंक्रीट की जब कास्टिंग होती है तो वहां पर पानी डाला जाता है, कम से कम 2 हफ्तों के लिए पानी डालना रहता है, और इसलिए डालना रहता है क्योंकि वहां पे हीट की लिबरेशन होती रहती है। जब कंक्रीट सीमेंट में जब पानी बनाया जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां पे हीट लिबरेट होता है। तो उस हीट को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि पानी को कितना चाहिए, पानी हम लोग पिछले क्लास में सीमेंट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कितना % पानी हमें रिक्वायर्ड है। तो अब वो पानी हीट लिबरेशन की वजह से खत्म ना हो जाए, इसमें हम लोग एडिशनल वाटर सप्लाई करते हैं ताकि वो वाटर का जो लेवल है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। तो जैसे जैसे हीट लिबरेट होता है वैसे वैसे सीमेंट जो है वो हार्ड होते जाता है, और हार्ड होने के साथ साथ वो स्ट्रेंथ भी अपना गेन कर लेता है। ये हो गया आपका क्यूरिंग। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपना सेटिंग टाइम के ऊपर। सेटिंग टाइम, मुझे मेरे ख्याल से इसके बारे में इसमें आपको पता होगा कि इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट होती है। तो 30 मिनट के अंदर ही यू विल हैव टू प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट एंड प्लेस दी कंक्रीट। जहां पर भी आपको प्लेस करना है, इस 30 मिनट जो शुरू होती है वो उस समय शुरू होती है जब आपने पानी को सीमेंट में ऐड किया रहता है, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर ही आपको सीमेंट को प्रिपेयर करना है, कंक्रीट को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके उसको ट्रांसपोर्ट करना है जहां पर साइट पर जहां उसको जाना है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ही उसको प्लेस करके वाइब्रेट कर देना है, कंपैक्ट कर देना है। और इसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है वो होती है 6 आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है। अब जो क्यूरिंग किया जाता है ना, यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था। जो क्यूरिंग किया जाता है वो क्यूरिंग किया कैसे जाता है, उसके भी ढेर सारे मेथड्स हैं। तो जो पहला मेथड है कि आप पानी को स्प्रे कीजिए, यू स्प्रे द वाटर। सेकेंड मेथड क्या होता है कि हम लोग स्टीम क्यूरिंग करते हैं प्रीफैब स्ट्रक्चर पर। स्टीम क्यूरिंग किस पर किया जाता है? प्रीफैब स्ट्रक्चर्स, प्रीफैब एलिमेंट जो हम लोग मंगाते हैं उस पर हम लोग स्टीम क्यूरिंग करते हैं। फिर सबसे बेहतरीन तरीका है वो कॉलम्स के लिए, सबसे बेहतरीन जो स्लैब्स के लिए है वो है पॉन्डिंग। उसको ब्लॉक कर देते हैं, पानी को इधर उधर जाने नहीं देते। पॉन्डिंग आपको दिखिए, कभी भी छत की ढलाई होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और ब्लॉक करने के बाद वहां पर पानी भर दिया जाता है और वो पानी से उसकी क्यूरिंग होती रहती है। एंड द सेकंड, ये जो पॉन्डिंग का मेथड है इसको आप कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्टिकल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल मेंबर को आप पॉन्डिंग से क्यूरिंग कर सकते हैं, पर वर्टिकल मेंबर को क्यूरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जूट का बैग वगैरह को निकाल देते हैं और उसके ऊपर कवर कर देते हैं। तो वेट कवरिंग ऑन द सरफेस, वेट कवरिंग ऑन द सरफेस, जूट बैग वगैरह से इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। क्यूरिंग हो गया, सेटिंग टाइम भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए, प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में ना 4 स्टेप्स आते हैं, 4 चीज आती है। पहली चीज जो होती है वो होती है बैचिंग। दूसरा जो होता है वो होता है मिक्सिंग। तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टिंग।
और फोर्थ और जो लास्ट होता है दैट इज कंपैक्टिंग। दैट इज कंपैक्टिंग। तो फर्स्ट जो बैचिंग है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा बैचिंग है, बैचिंग में क्या होता है कि दो टाइप के बैचिंग हम लोग करते हैं। पहला जो होता है वो होता है वॉल्यूम बैचिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है वेट बैचिंग। अब दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब जो दोनों में अंतर होता है, तो पहले हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देंगे कि वन बैग जो सीमेंट होता है, वन बैग जो सीमेंट होता है, वन बैग जो सीमेंट होता है, इसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज 35 लीटर। इसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज 35 लीटर, और इसका जो वेट होता है दैट इज 50 kg। ठीक है, पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा चीज क्या होता है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग वॉल्यूम बैचिंग, ठीक है, तो वॉल्यूम बैचिंग जब आप परफॉर्म करिएगा, यहाँ तो इसमें अपने अंतर देखिएगा। दूसरा अंतर यहाँ क्या होता है कि जो मेन दिक्कत होता है वॉल्यूम बैचिंग के लिए, वो हमको क्या होता है कि जो सैंड होता है, सैंड में हो जाती है बर्किंग। बर्किंग बर्किंग का मतलब हुआ इंक्रीमेंट इन दी वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाता है। सैंड में जो बर्किंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है। वो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट क्या कैसे होता है कि जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द सैंड, तो वो क्या करता है कि सैंड पार्टिकल के अराउंड मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है, और मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण उसमें एक दूसरे पार्टिकल में भी वैसे ही मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाएगा, और फिर क्या होता है कि उसमें एक रिपल्सिव फोर्स आ जाता है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे से सटने नहीं देता है। तो जब एक दूसरे से वो सटने नहीं देगा तो बीच में वॉइड क्रिएट हो जाता है, बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या होती है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो एनहांस हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कभी भी हम लोग वॉल्यूम बैचिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि गो थ्रू द वेट बैचिंग, क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता। अगर बर्किंग हुआ भी है तो वेट में उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी गो टू वेट बैचिंग। अब मिक्सिंग भी दो टाइप की होती है, हैंड एंड मशीन। हैंड एंड मशीन मिक्सिंग होती है। हैंड मिक्सिंग जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले कोर्स एग्रीगेट बिछा देते हैं, फिर कोर्स एग्रीगेट में हम लोग सैंड को डालते हैं। पहले भी मैंने बताया, सैंड में फिर हम लोग सीमेंट को डालते हैं, सैंड में हम लोग सीमेंट को डालते हैं, और फिर इसमें हम लोग वाटर को डालते हैं, वाटर को डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन में आप देखते होंगे कि ट्रांजिट मिक्सचर रहता है, एक ट्रक रहता है, ट्रक के ऊपर एक इन्वर्टेड सिलेंडर लगा हुआ रहता है जो कि घूमते रहता है, उसको हम लोग ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं। और उसी ट्रांजिट मिक्सचर से कंक्रीट जो है वो बैचिंग प्लांट से साइट पर पहुंचाई जाती है, और फिर पहुंचाने के बाद उसको वहां पर प्लेस किया जाता है, उसको वहां पर प्लेस किया जाता है। प्लेस करते समय ध्यान रखना होता है कि कंक्रीट का जो फॉर्म होना चाहिए, कंक्रीट को जो गिराना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 मीटर। 1 मीटर से अगर आप ज्यादा से कंक्रीट को गिराइएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका सैग्रीगेशन हो जाएगा, कंक्रीट में सैग्रीगेशन हो जाएगा। सैग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि कोर्स एग्रीगेट जो है वो आपके मिक्सचर से अलग हो जाएगा। एग्रीगेट जो कोर्स एग्रीगेट जो आपका गिट्टी जो है वो मिक्सचर से बाहर आ जाएगा, सैग्रीगेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि उसे 1 मीटर से ज्यादा से नहीं गिराया जाए। नेक्स्ट जो थिंग इज कंपैक्टिंग। कंपैक्टिंग में हम लोग करते क्या है कि कंपैक्टिंग इज नथिंग बट इट इज द रिमूवल ऑफ एयर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30% जो स्पेस होता है वो एयर ऑक्युपाई किए हुए रहता है। तो कंपैक्ट जब आप कीजिएगा तो उसका 30% का रिमूवल हो जाता है। अब जो कंपैक्टिंग किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहले जो कंपैक्टिंग है वो है हैंड से, हैंड कंपैक्शन, और जो दूसरा है वो है मशीन से। हैंड कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रैम्पिंग करते हैं। रैम्पिंग RAMMING, चाहे फिर टैंपरिंग।
अब देखिएगा कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस रहता है जिसके फ्लैट बॉटम रहते हैं, उससे एक आदमी उसको हैंड से टैप करते रहता है, हैंड से मारते रहता है, तो वो हैंड मिक्सिंग हो गया। और दूसरा जो मशीन विक्सिंग है, तो मशीन विक्सिंग जो है वो हम लोग वाइब्रेटर से करते हैं, वाइब्रेटर वाइब्रेटर से करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेटर आर यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कंपैक्ट कॉलम, तो कॉलम के केस में हम लोग लीडिंग वाइब्रेटर यूज करते हैं, कॉलम के केस में। अगर आपको स्लैब को कंपैक्ट करना है तो सरफेस वाइब्रेटर इज यूज फॉर कंपैक्टिंग slab. If we want to compact a formwork or as such mod of PCC or pavement sleepers or electric pole, so for there you can use vibrating table. और अगर किसी फॉर्मवर्क में कोई चीज पहले से कास्टेड किया हुआ है, उस फॉर्मवर्क को कंपैक्ट करना है, तो एक फॉर्मवर्क कंपैक्टर आता है। जैसे आपने कोई प्री स्ट्रेस मटेरियल बना रखा है, प्री स्ट्रेस एलिमेंट आपने बना रखा है, प्री स्ट्रेस बीम या प्री स्ट्रेस कॉलम आपने बना रखा है, तो अगर आपको उसको कंपैक्ट करना है तो वो पूरा का पूरा मॉड को आप एक फॉर्मवर्क में ही वाइब्रेटर अटैच रहता है। वो जो वाइब्रेटर है वो जब वाइब्रेट करता है तो पूरा फॉर्मवर्क जो है उसका वो साथ साथ वाइब्रेट करता है, तो उसमें जो प्रेजेंट रहता है सीमेंट और कंक्रीट वो भी कंपैक्ट हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो जनरली जो प्रॉपर्टीज होती है वो जब कंक्रीट की जो डिस्कस करने वाली रहती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फ्रेश कंक्रीट और दूसरा होता है हार्डन कंक्रीट। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होता है, एक फ्रेश एक हार्ड। तो फ्रेश कंक्रीट को ही ना हम लोग ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं, फ्रेश कंक्रीट को ही हम लोग ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर में जो कुछ बताया गया उसको देखिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में। फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मेजर प्रॉपर्टीज होती है वो वर्केबिलिटी होती है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो वर्केबिलिटी से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे।